Furthermore, Congressman Krishnamurthy has been at the forefront of our enhanced cybersecurity efforts and to protect our nation from emerging threats. He is the member of the House Intelligence Committee, and he has worked tirelessly to ensure the safety and security of our digital infrastructure. With unwavering dedication and profound commitment to public service, Congressman Krishnamurthy has been a true advocate for his constituents, which many of us are, and he's a guiding light for the nation. It is my distinct honor and privilege to introduce to you Congressman Raja Krishnamurthy. Please come on up and share a few words. Jai Gurudev. Thank you for that lovely introduction. You only made one tiny issue, which is I was actually born in India. And so you can say that I was made in India. I want to observe those 3 rules of public speaking. Be short, be sweet, be gone. 3 points. Can you give a big round of applause to the organizers of today's event, Harendra Mangrola and the whole team? Didn't they do a wonderful job? They brought everyone together on a Monday evening of all nights, and all of you are coming from work, or your family members are coming from work on a summer night, so all of you are here, so it's beautiful to see all of you. Second point, can you give a big round of applause to our honored guest, Dr. Chinmay Pandya. I had a few minutes to speak with him. I can tell immediately he's a deeply learned man and a font of wisdom. And as he told me, the philosophy of Parivar is self-embellishment and societal upliftment. Now, self-embellishment is about making yourself a better person. Is that right? Are we all trying to do that? And then secondly, it's in service of uplifting society, right? It's not enough for us to just talk about I and me. We have to talk about us and we. Am I right about that? Each of us does better when all of us do better. And that is what the purpose of the Parivar philosophy is. Third and final point, I'm going to go a little bit more into this, which is happy 50th anniversary to Gayatri Gyan Mandir. I have been to Gayatri Gyan Mandir many times, many times. I did not know it's 50 years old. It looks very, very modern and new, mainly because of you. You are making sure that the temple is always a place that is welcoming, that's comforting, a place of solace, a place to come together in fellowship, and a place where we can celebrate our cultures and traditions. Am I right about that? Now you may know this, but there are only a handful of Indian Americans in the United States Congress, and I'm one of them. I like to call us the Samosa Caucus. In fact, Prime Minister Modi, I coined that term, Samosa Caucus, and Prime Minister Modi talked about the Samosa Caucus last week in his speech to the Congress. And Indian Americans, of whom you are distinguished members, are some of the finest people in America. You know, you may know this, but you are among the best educated. You are among the most prosperous people in America. And you are some of the best looking people I've ever seen. Okay, I didn't read that in Wikipedia. I'm embellishing a little bit, self-embellishing. But the point is this. You are some of the finest citizens in America, and you are also some of the finest people in the Chicagoland area.
And these finest people in the Chicagoland area are now creating a mandir, which is one of the finest mandirs in the Chicago area, the Gayatri Gyan Mandir. Finally, I should say, happy Guru Purnima in advance. My staff told me that the root of the word guru is removal and darkness. That is the purpose of a guru, to remove the darkness, to show the light. So on Guru Purnima, we are trying to be the light. We are trying to show the light to others, the right path, and to do our duty, and to remember that old saying, Vasudeva Kudumbakam, the world is our family. And so we must always remember that. Above all, the world is our family. We will treat everyone in that way accordingly. So I want to close with my favorite saying. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why we call it the present. I am honored and blessed to be with you here for just a few short minutes of your precious time to celebrate you, to celebrate our distinguished visitor, Dr. Pandya, and to celebrate the Gayatri Gyan Mandir, and to celebrate how together we are going to make the world a better place. Thank you so much. God bless you. And then I'd like to call up Dr. Sheriff, please. To Mr. Somnath Ghosh, a true ambassador in India's rich heritage, tradition, and values. Namaskar. First of all, my respect and pranam to all the dignitaries who are here from the Gayatri Kunj and the Shanti Kunj in Haridwar, particularly Dr. Saab, Dr. Chinmay Pandya. Thank you for coming, even if for a few hours. It's a great inspiration for us, and it's a happy occasion for us. I asked Guruji, next time when he is coming, he must stay here for some time and hold some classes. Congressman Krishnamurti ji, he talked about Vasudhaiva Kutumbakam. In fact, Guruji would tell you that one of the focus area of G20, we are the G20 chair this year. Very soon we are expecting all the great dignitaries from around the world to be in India, including President of the United States, hopefully, if everything works out. And there, this idea of Vasudhaiva Kutumbakam is the focus. One earth, one family, one future. And I see this entire effort, what you are doing, what all the followers are doing, what Guruji is doing and all others are doing, this is in the same line, because what we are taught in Indian thoughts, in our religious thought, we don't divide. We don't see the world as we and they. We see it as a one single human heritage. When we pray, we talk about happiness for all, health for all. We don't say that health for Indians, health for even Hindus or any community or any sect. We talked about the entire humanity. In fact,
Even going back in Vedas, if you really look deep into Vedas, we talk about well-being of all the planet. We talk about well-being of the trees and plants and animals, isn't it? If you really look at it. So this is our strength, and I think what is taught by Guruji and everything, the entire establishment with so many centers all around the world is essentially that. This is that of unity, that of sustainable living, that of live well, you do well to yourself, your own well-being, your peace and your own health, as well as let us make this society better, let us make this world better. Along with myself, I will also do good for everyone. I think in similar other occasion, I told you that 9 years of my life, I didn't have time to tell it to Guruji. That 9 years of my forming, till my class 12, I stayed in Ramakrishna Mission in hostel. There, one of the small, few words still haunt me, and this should be guidance. We are taught in Indian philosophy, teno takteno vunjita. By living, by giving, by foregoing for others, you actually enjoy things. You become richer. So I think with that motto, people like Guruji and all others who are there, all the followers are doing this great work. I sincerely wish, and there will be all support from us for having a greater establishment here and maybe a much bigger mandir and center. But Guruji, please come again, and next time you have to stay here. So thank you once again. It's a very happy occasion. I am very happy to be here. And once again, my pranam and respect to all who are here. Namaskar. All right. Now it is my honor to introduce an exceptional individual who has dedicated his life, as we've already seen, in the pursuit of knowledge, spirituality, and education. Dr. Chinmay Pandya is a visionary leader who has played a pivotal role in shaping Dev Sanskriti Vishwavidyalaya into a center of excellence for higher education and spiritual learning. With this deep understanding of Vedic wisdom and contemporary education, he has brought forth a transformative approach to academia. As the Pro-Vice Chancellor of the university, Dr. Pandya has fostered an environment that goes beyond the traditional education. He has created a space where students not only acquire knowledge like a traditional university, but they develop a profound understanding of their own inner selves and the world around them. With the realization of his exemplary achievements in philanthropy and academia, he was granted member and serves as a judge for the prestigious Templeton Prize Award. Under Chinmay Pandya's guidance, All World Gayatri Parivar has also flourished as a global movement. He has helped lead the organization with remarkable vision. Dr. Chinmay Pandya has become a beacon of light for us youth. Born with a deep sense of devotion and an unwavering commitment to the welfare of humanity, he has become an inspiration to the millions of youth around the world. I personally can attest to this as he integrates, and I've seen it firsthand through the various camps and initiatives, how well he integrates with all generations of youth, from the young Bal Sanskar youth to those who are college bound, all the way to those with families. Prior to his role as Pro-Vice Chancellor, Dr. Pandya completed his medical training
in the United Kingdom, where he gained the membership of the Royal College of Psychiatrists. Today, as we gather here, we have the privilege of hearing from Dr. Pandya himself. We will have the opportunity to delve into his wisdom, be inspired by his vision, and to learn from his remarkable journey. Ladies and gentlemen, please join me and please rise in giving a warm round of applause to Dr. Chinmay Pandya, the Pro Vice Chancellor of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, a visionary leader and a catalyst for transformative education. नमन वंदन करें गुरु सत्ता को। ओम नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अपने स्थान पर बैठ जाएं। शिष्यों का गुरु को समर्पण, साधक का सविता को अर्पण। शिष्यों का गुरु को समर्पण, दीपक का ज्योति को, जातक का चंदा को। दीपक का ज्योति को, जातक का चंदा को। गंगा का सागर को अर्पण, साधक का सविता को अर्पण। शिष्यों का गुरु को समर्पण। सबका समर्पण हो ऐसा, दीपक पतंगे के जैसा। सबका समर्पण हो ऐसा, दीपक पतंगे के जैसा। दूरी रहे ना जरा भी, बिंदु और सिंधु के जैसा। दूरी रहे ना जरा भी, बिंदु और सिंधु के जैसा। अर्जुन का कान्हा को, राधा कन्हैया को। अर्जुन का कान्हा को, राधा कन्हैया को। बंसी का होठों को अर्पण, साधक का सविता को अर्पण। शिष्यों का गुरु को समर्पण, साधक का सविता को अर्पण। शिष्यों का गुरु को समर्पण। डोरी हम गुरु को थमाए, गुरुमय ही जी कर दिखाए। डोरी हम गुरु को थमाए, गुरुमय ही जी कर दिखाए। बन जाए कठपुतली हम सब, उनका ही कर्तव्य दिखाए। बन जाए कठपुतली हम सब, उनका ही कर्तव्य दिखाए। औरों का सर सिज को, समिधा का अग्नि को। बूंदों का बादल को, समिधा का अग्नि को। बूंदों का बादल को अर्पण, साधक का सविता को अर्पण।
का गुरु को समर्पण, साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। गुरु में सभी डूब जाएं, अस्तित्व अपना मिटाएं। गुरु में सभी डूब जाएं, अस्तित्व अपना मिटाएं। मैंपन को गुरु में घुलाएं, गुरु की ही पहचान पाएं। मैंपन को गुरु में घुलाएं, गुरु की ही पहचान पाएं। दीपक पतंगे को कंकर का शंकर को, दीपक पतंगे को कंकर का शंकर को, नैवेद्य प्रभु को हो अर्पण, साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। ताल के साथ आप भी ताली बजा सकते हैं। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। दीपक का ज्योति को, चातक का चंदा को, दीपक का ज्योति को, चातक का चंदा को, गंगा का सागर को अर्पण, साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। बंसी का होठों को अर्पण, शिशुओं का माता को अर्पण। समर्पण क्या होता है? हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी विराजमान हैं। सिमट जाती है रेती तो उसे चट्टान बना देती है, सिमटती है जब रेती तो उसे चट्टान बना देती है, श्रद्धा भक्त की ही लौटकर पाषाण को भगवान बना देती है। तो ऐसे हमारे एक समर्पण की प्रतिमूर्ति, गुरु के प्रति समर्पण क्या होता है, परिभाषा आपने गीत में सुनी। आप उनके वक्तव्य में, उनके विचारों में गुरुदेव के विचार सुनेंगे। प्रश्नों के समंदर में एक हर प्रश्नों के जवाब हैं, प्रश्नों के समंदर में हर प्रश्नों का जवाब है। युवाओं के दिलों में ये खिलते हुए गुलाब हैं और परम पूज्य गुरुदेव माता जी की ये एक चलती फिरती किताब है। तो आइए उनसे सुनते हैं कि गुरु के प्रति क्या भाव होते हैं। आदरणीय चिन्मय भैया। बहुत धन्यवाद ओमकार भाई साहब। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का, ज्ञान परंपरा का, वैदिक परंपरा का एक ऐसा पवित्र, पावन और पुनीत मंत्र है जिसकी प्रेरणा एक ही है कि मनुष्य के जीवन के रूप में जो संभावना हम लोगों को मिली, द अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव रिसीव्ड, उस संभावना को साकार करने का संकल्प हमारे भीतर में जाग सके, उस सौभाग्य को जगाने का, उस संकल्प को जगाने का, उस समर्पण को अवतरित करने का मंत्र ये गायत्री का पावन मंत्र है। ये याद दिलाता है कि मनुष्य के जीवन के रूप में अतुलनीय अपरिमित संभावनाओं को लेकर हर जीवात्मा आती है। यदि वो साकार हो पाती है तो मनुष्य के जीवन के अंदर देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, जो परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार का उद्देश्य बताया, वो साकार हो पाता है। यदि आप वेदों को पढ़ें, पुराणों को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें, सूक्त ग्रंथों को पढ़ें, सूत्र ग्रंथों को पढ़ें, स्मृतियों को पढ़ें,
आश्वलायन गुह्यसूत्र को पढ़ें, स्तंभ को पढ़ें, आपस्तंभ को पढ़ें, मैत्री उपनिषद को पढ़ें, जैमिनी को पढ़ें, कात्यायनी को पढ़ें, नारायणी उपनिषद को पढ़ें। यदि आप ऋग्वेद के 6ठे मंडल को पढ़ें, अथर्ववेद के 3रे, 9वें और 12वें को पढ़ें, यजुर्वेद के 19वें को पढ़ें, या फिर सामवेद के 18वें को पढ़ें, इनमें से किसी को पढ़ें, कौशिकी को पढ़ें, ऐतरेय ब्राह्मण को पढ़ें, गोपथ ब्राह्मण को पढ़ें, संहिताओं को पढ़ने का अवसर मिले, तो एक चीज सारे के सारे शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर, उपनिषदों के अंदर बड़ी गंभीरता के साथ मिलती है कि जितने भी अध्यात्म वेदता हुए उन सब ने एक चीज के प्रति अपनी पूरी सहमति बताई है। सर्वे शास्त्रा द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा आदि शक्ति उपासनते गायत्री वैद मातरम। कहते हैं कि जितनी भी उपासना की पद्धतियां हैं वो मिलकर एक ही आदि शक्ति की पूजा कर रही हैं, उसको माँ गायत्री के नाम से पुकारा गया। और क्यों कहा गया? कहने के पीछे का कारण ये था कि जो गायत्री का मंत्र है उसे विश्व हित कारिणी कह करके पुकारते हैं। पैरासीटामोल की गोली मैं लूं, मेरा बुखार जाए तो हर कोई बोलता है, पर गोली मैंने ली और आपका बुखार जाए ऐसा गायत्री का मंत्र बोलता है। विश्व हित कारिणी, जिसको करने से, सुनने से, बोलने से उसका लाभ तो होता है जो करता है, पर लाभ उसका भी होता है जो कहीं दूर पर बैठा है। इसलिए गायत्री के मंत्र को विश्व हित कारिणी कह करके पुकारा गया। वो शक्ति जिसने विश्वरथ को विश्वामित्र में बदला, जन्म लेने का नाम विश्वामित्र का विश्वरथ था, जिसके अंदर रथ की तरह से विश्व को कुचल देने का भाव हो, और गायत्री के मंत्र को देखने के कारण वो विश्वामित्र बन गए। विश्वामित्र वो बन पाता है जिसके हृदय में सभी के कल्याण का भाव होता है। गायत्री का मंत्र स्मरण दिलाता है कि हमारे जीवन में शक्तियों के स्रोत छुपे पड़े। We all have got the possibilities to enlighten our lives, पर उसको साकार करने के लिए हमें हमारे भीतर की श्रद्धा को जगाने की आवश्यकता होती है। उस श्रद्धा के जागरण का जो मंत्र है वो गायत्री का पावन मंत्र है। एक बड़ी प्यारी घटना आती है। जगन्नाथपुरी में एक व्यक्ति था, नेत्रहीन था, he was blind. He used to go every day to the temple. हर रोज भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता था। अब वहां पर हजारों लोग लाइन में लगते थे, उनमें से एक वो भी लगा करता था। तो आगे वाले व्यक्ति को तो पता नहीं है कि जो पीछे खड़ा है वो ब्लाइंड है, तो कभी किसी की कोहनी लगती, कभी किसी का धक्का लगता, एंड ही यूज्ड टू एम्ब्रेस ऑल ऑफ दोज चैलेंजेस। हर रोज लाइन में लगता, भगवान के दर्शन को जाता। एक दिन पुजारी ने रोक लिया। पुजारी तो रोज देखते थे, तो पुजारी ने रोक करके उस अंधे व्यक्ति से पूछा, नेत्रहीन व्यक्ति से पूछा कि भैया तुम क्यों आते हो? तुम्हें तो भगवान की मूर्ति दिखाई भी नहीं पड़ती। तो नेत्रहीन व्यक्ति बोला, मुझे भगवान की मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती, पर भगवान को मैं तो दिखाई पड़ता हूं। मैं यहां पर उनकी हाजिरी लेने के लिए नहीं आता हूं। आई एम नॉट हियर टू टेक हिज अटेंडेंस, आई एम हियर टू गिव माइन। मैं यहाँ पर अपनी उपस्थिति देने के लिए आता हूँ। हम इस आशय के साथ गायत्री के मंत्र को करते हैं कि जो शक्ति हर जगह पर विद्यमान है, वो जानती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा सीसीटीवी लेकर के भगवान ही बैठे हैं। हर व्यक्ति के कर्म उनकी नज़रों के सामने है। हमारे जीवन की दिशा सही हो, भाव सही हो, इस भाव के साथ हम लोग माँ गायत्री का ये पावन मंत्र करते हैं। सभी से विनम्र निवेदन कि जो जहाँ हैं वहाँ पर स्थिर शरीर के साथ, शांत मन के साथ, गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर आ रहा है, भाव के जागरण का यह अवसर है। शांत चित्त, दत्त मन के साथ यदि इन भावों को हम लोग सुन सकेंगे तो जीवन में एक महत्वपूर्ण संकेत को लेकर के यहाँ से जा सकेंगे। शांत मन के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र, उस शक्ति को आवाहन जो सद्ज्ञान की, सद्भाव की, सद्कर्म की, सत्प्रवृत्ति की देवी है, माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में गुप्त नवरात्रि की अष्टमी का ये पावन दिन एक अत्यंत ही सौभाग्यशाली समय में एक बड़े ही महत्वपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखकर गुरु पूर्णिमा की पूर्व वेला में भावनाओं के जागरण को, श्रद्धा के जागरण को उद्देश्य बनाकर आज जब हम लोग शिकागो की इस पवित्र भूमि पर उपस्थित हैं, वो स्थान जिसने नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद में बदला, उस भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य यदि आज हमको मिला है, तो इस अवसर पर हम लोगों के साथ यहाँ मंच पर उपस्थित आदरणीय त्रिपाठी मामा जी, आदरणीय श्री ओमकार भाई साहब, आदरणीय हसमुख भाई, यहाँ उपस्थित शिकागो के गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, इस क्षेत्र के सभी गणमान्य अतिथिगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही गंभीर विषय को ध्यान में रखकर यहाँ उपस्थित हो पाने का ये सौभाग्य हम लोगों को मिला है। शिकागो की पावन भूमि, यहाँ नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनने का अवसर मिला। तो अपनी बात को आरंभ करूं तो मुझे स्वामी विवेकानंद का स्मरण वैसे ही आ जाता है। 5 वर्ष की लंबी यात्रा पर स्वामी विवेकानंद विदेश में थे। He came all the way from Canada, ended up in Chicago, became स्वामी विवेकानंद। और यहाँ से जब 5 वर्ष की यात्रा के बाद जब वो दोबारा भारत को पहुँचे, उस समय तक उनकी जो कीर्ति थी वो पूरे विश्व में पहुँच गई थी। Everyone knew who स्वामी विवेकानंद is। तो उनके सम्मान में एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन कोलंबो में हुआ। The moment he touched the shore of Colombo, पूरा का पूरा शहर उनके स्वागत के लिए उमड़ गया। There was hardly anyone left who did not come to see him। हर व्यक्ति वहां पर उपस्थित था। और जो जनसभा के अध्यक्ष थे उन्होंने स्वामी विवेकानंद का सम्मान किया, ही ग्रीटेड हिम। और सम्मान करने के बाद उन्होंने स्वामी विवेकानंद से एक प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया? प्रश्न ये किया कि स्वामी जी, इतने दिनों तक आप भारत की भूमि से दूर रहे, तो आपकी उपस्थिति का लाभ वहां के लोगों को मिला। वेद है, पुराण है, उपनिषद है, योग सूत्र है, गीता है, जिन विषयों से वो सर्वथा अपरिचित थे, उन विषयों में जानने का सौभाग्य उनको मिला। आपको क्या मिला? यू हैड टू लीव इंडिया। सन्यासी समुद्र पर्यंत जाते नहीं, तो आपको इतने दिन तक वहां रहने का क्या लाभ हुआ? और स्वामी विवेकानंद ने उसका बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा, तो उसका सबसे ज्यादा बड़ा लाभ तो मुझे ये हुआ कि पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था, अब उनको प्रमाण पूर्वक सत्य मानता हूं। जिनको मैं औरों के कहने पर आकर के सच माना करता था, भारत देवभूमि है, अवतारों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, सब लोग बोलते थे भारत माता की जय, मैं भी बोलता था, पर मेरा अपना उस विषय में कोई अनुभव नहीं था, विश्वास नहीं था। बोले, इतने दिनों तक मैं भारत की भूमि से दूर रहा हूं, तो अब इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे विश्व में यदि कोई एक देश ऐसा है जहां पर दया का, त्याग का, करुणा का, आध्यात्मिक उत्कर्ष का, आध्यात्मिक अनुसंधान का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो वो देश भारत का देश। और बोले, पूरे विश्व में कोई एक देश ऐसा है, आप सोच के देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। पूरे विश्व में यदि कोई एक देश ऐसा है जहां पर हर उस आत्मा को जो ईश्वर को पाने का प्रयत्न कर रही है, एवरी सिंगल सोल that is striving to reach to the final freedom, he has to take a birth in India। और वो लिए बगैर उसका साल्वेशन संभव नहीं, उसकी मुक्ति, उसका मोक्ष संभव नहीं। और बोले, आज नहीं तो कल इसी भारत की भूमि से ज्ञान की वो धाराएं फिर से बहेंगी, जो अपने प्रकाश से पूरे विश्व को आक्रोशित करेंगी, आंदोलित करेंगी, आलोकित करेंगी, उद्वेलित करेंगी। और आप सोच करके देखें, इतने वर्षों पहले जो बात स्वामी विवेकानंद ने कही, वो बात कितनी सत्य थी।
यदि भारत की भूमि से ज्ञान की, ध्यान की, तप की, योग की, आस्था की, अध्यात्म की धाराएं न बही होती। हम कल्पना करके देखें कि एक ऐसा विश्व जहां पर कभी भगवान राम के प्रत्यंचा के स्वर न गूंजे होते, भगवान कृष्ण का पांचजन्य का उद्घोष न हुआ होता, बुद्ध का मौन मुखरित न हुआ होता, महावीर का ध्यान प्रकाशित न हुआ होता, जहां पर कभी गुरु गोविंद सिंह का त्याग समर्पित न हुआ होता, जहां पर सप्तऋषियों की आवाजें न गूंजी होती, मीरा, कबीर, सूल, तुलसी, नरसिंह मेहता से लेकर जलाराम बापा, एक से एक बढ़कर के भक्ति के शिखर जहां पर आए न होते, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, राजा भोज से लेकर एक से एक बढ़कर शूरमान आए होते, गार्गी, घोषा, अपाला से लेकर उज्जैनी, उज्ज्वला, एक से एक बढ़कर ज्ञान की शिखर नारियां पैदा न हुई होती, अनुसुईया की आवाज न गूंजी होती, शांडिली का त्याग प्रखर न हुआ होता। हम सोच करके देखें कि वो देश जहां पर कभी शंकर का, रामानुज का, मध्व का, निम्बार्क का, भास्कर का ज्ञान अपने शिखर पर पहुंचा ना होता, तो क्या इंसान इंसान बन पाया होता? इंसान को इंसान बनाने का श्रेय यदि किसी एक संस्कृति को जाता है तो भारतीय संस्कृति को जाता है। जो चिंतन भारत की भूमि से निकला वो ऐसा अद्भुत और ऐतिहासिक और असाधारण निकला जिसने केवल एक देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को मानवता का संदेश सुनाया। इट वॉज टेकन बर्थ। पैरासीटामोल यदि किसी एक देश में खोजी जाती है तो सिर्फ उसी देश की नहीं हो जाती है। वो मानवता का जन्म भारत में हुआ तो सिर्फ भारत के लिए नहीं हुआ। इट वॉज गिवन बर्थ टू द एंटायर ह्यूमैनिटी। जो चिंतन भारत की भूमि से निकला, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा, वो भारतीय इतिहास का, भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय था। इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमैनिटी। और जो एक गंभीर चिंतन भारत की भूमि से निकला वो क्या निकला? वो ये निकला कि हमने सारी आध्यात्मिक विभूतियों का आधार साधना को नहीं, श्रद्धा को माना। साधना करने के लिए तो रावण भी बैठता है, साधना करने के लिए तो सारे असुर बैठते हैं, सारे दैत्य बैठते हैं, सारे राक्षस बैठते हैं। उनसे बढ़कर के तपस्या करने वाले आपको कम ही मिलते हैं। पर हमने आध्यात्मिक विभूतियों का आधार उनको नहीं माना, हमने श्रद्धा को माना। आप सोच करके देखिए, मंत्र एक ही तरह के होते हैं, जपने के तरीके एक जैसे होते हैं, गायत्री का मंत्र बदल नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि हरिद्वार में अलग है, गुजरात में अलग है, राजस्थान में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, शिकागो में अलग हो गया, अटलांटिक सिटी का गायत्री मंत्र अलग है। नहीं, मंत्र एक ही है, पूजा करने के तरीके एक है। यहाँ तक कि कई कई बार गुरु एक होते हैं, पर उसके बावजूद मिलने वाला परिणाम अलग हो जाता है। जो एक को मिलता है वो दूसरे को नहीं मिल पाता। जिसको अर्जुन प्राप्त कर पाते हैं उसको दुर्योधन कभी नहीं प्राप्त कर पाता, और जो एकलव्य को मिलता है उसको प्राप्त करने से अर्जुन चूक जाता है। अंतर इस बात का नहीं है कि गुरु ने क्या दिया, ऐसा नहीं है कि एक को बुलाया और अकेले में आकर के कुछ ज्यादा सिखाया। अंतर गुरु के देने का नहीं, अंतर शिष्य के लेने का पड़ जाता है। द डिफरेंस कम्स नॉट फ्रॉम व्हाट ही वाज एबल टू गिव, फ्रॉम व्हाट द अदर पर्सन वाज एबल टू रिसीव। एक जो कहानी आती है बहुत प्यारी, एक संत के पास गए उसके शिष्य, और शिष्य ने जाकर के उनसे कहा कि हमारी समझ में एक बात नहीं आती। क्या नहीं आती? बोले वही गायत्री का मंत्र है, उसको बोल करके विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बन गए। हम लोग बोलते हैं तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता? संत बोले कि बहुत अच्छा प्रश्न है, पर इसका उत्तर यहाँ नहीं दूंगा, बाजार के अंदर दूंगा। बाजार के अंदर लेकर के गए, वहां पर एक टेम्पल बन रहा था। लोग अपनी पीठ के ऊपर ईंटें उठा उठा करके ले जा रहे थे। संत ने एक व्यक्ति को रोका, रोक करके पूछा क्या कर रहे हो? वो व्यक्ति गुस्सा हो गया। बोले आपको दिखाई नहीं पड़ता है, आंखें की बटन लगा रखे? बोले इतना बड़ा आदमी कंधे पर ईंटें उठा के जा रहा है, पूछ रहे हो क्या कर रहे हो? बोझ उठा रहा हूं और क्या कर रहा हूं, मैं तो अपने कंधे पर सामान उठा के जा रहा हूँ। उनने कहा भैया गुस्सा नहीं करो। दूसरे को रोका, क्या कर रहे हो? उसने कहा कि घर में पत्नी बच्चे हैं, कमाना पड़ता है, पूरे उनके लालन पालन के लिए, उनके पालन पोषण के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। आई एम अर्निंग माई लाइवलीहुड। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तीसरे को रोका कि तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही पूछा वैसे ही उस व्यक्ति के हाथ श्रद्धा से जुड़ गए। बोले भगवान का मंदिर बन रहा है और मुझे सौभाग्य मिला है कि भगवान के मंदिर में ईंटें लगा करके आऊं, भगवान का मंदिर बना रहा है। संत बोले समझ में आया? ईंटें तीनों उठा रहे हैं, एक मजदूरी में उठा रहा है, एक मजबूरी में उठा रहा है, भक्ति में एक ही उठा रहा है।
जो भक्ति में उठाता है उसकी लगाई गई ईंट से मंदिर बन पाता है। मंत्र वही है, शब्द वही है। परिणाम उसके जीवन में आता है जिसके हृदय से श्रद्धा के भाव निकल आते हैं। श्रद्धा के भाव होते हैं तो जिंदगी के सारे चमत्कार हो पाते हैं। श्रद्धा होती है तो प्रहलाद की पुकार पर भगवान खंभा फोड़ करके आते हैं। श्रद्धा होती है तो मीरा की पुकार पर भगवान पत्थर की मूर्ति से निकलते हैं, सांप से डसवाते हैं, जहर पी के जाते हैं। श्रद्धा होती है तो एकलव्य की पुकार पर मिट्टी की मूर्ति द्रोणाचार्य में बदल जाती है। श्रद्धा होती है तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पुकार पर जो काली की प्रतिमा है वो माँ काली में बदल जाती है। श्रद्धा नहीं होती है तो बड़े बड़े उपचार भी व्यर्थ ही होकर के रह जाते हैं। जो जिंदगी का चमत्कार है वो सबसे बड़ा चमत्कार किसका है? श्रद्धा का है। श्रद्धा होती है तो जिंदगी में सब कुछ संभव हो पाता है। श्रद्धा नहीं होती है तो कुछ भी संभव नहीं हो पाता। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि जो एक व्यक्ति को मिलता है वो दूसरे को नहीं मिलता। गीता में भगवान कहते हैं श्रद्धामयम यह पुरुष यो स एव स। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जिसकी जैसी भावना होती है, वैसा उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। कर्म से नहीं, उसके पीछे की भावना से। आप सोचिए कि जब भगवान यज्ञ करने के लिए बैठे तो देवता पुष्पों की वृष्टि करने के लिए आए, और रावण यज्ञ करने के लिए बैठा तो भगवान ने हनुमान जी को भेजा, जाओ तोड़ करके आओ। क्यों? यज्ञ तो पवित्र कर्म है। करने वाले की भावना के अनुसार उसका परिणाम हो जाता है। गलत भावना के अनुसार जब रावण यज्ञ करने के लिए बैठता है तो उसका परिणाम भिन्न हो जाता है। जो श्रद्धा है वो ये बताती है कि कर्म का परिणाम इस आधार पर आता है कि आपने उसके अंदर भावना क्या लगाई। और मैं कहता हूँ बड़ी चीज के लिए नहीं सोचे, हम जिंदगी की छोटी चीजों के लिए सोचे। जिंदगी का एक काम आप सोच के बताइए जहां पर आपका हार्ट इन्वॉल्व नहीं हो और परिणाम आ गया हो। एक काम आप सोच के बताइए। देयर इज नॉट इवन ए सिंगल थिंग। दिल के अंदर बात उतर जाती है तो रात के 12 बजे भी आदमी काम करने को तैयार हो जाता है, और दिल के अंदर बात नहीं उतरती तो दुनिया की सारी बातें लोग सिखाएं, सारी की सारी शिक्षाएं हो, सारे के सारे अनुशासन हो, तब भी आदमी की जिंदगी में एक कर्म नहीं घट पाता। घटाने के लिए देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज नीडेड, इट शुड कम फ्रॉम योर हार्ट। जहां पर दिल लग गया वहां पर परिणाम निकल करके आता है। जहां पर व्यक्ति की भावनाएं चली गई वहां विचार होते हैं, जहां विचार होते हैं वहां कर्म होता है, जहां कर्म होता है वहां परिणाम आता है। नहीं तो डायबिटीज हो गई है पर आदमी के दिल में बात नहीं गई है, मस्तिष्क में तो गई है, दिमाग में तो ये बात गई है कि देखो हमें मीठा नहीं खाना है, पर जैसे ही सामने लड्डू आएगा वैसे दिल तो चला गया। अब दिल चला गया तो आदमी वो करेगा जो दिल करना चाहता है, जो दिमाग करना चाहता है वो नहीं करेगा। जहां पर दिल चला जाता है आदमी वहीं पर करने के लिए जुट जाता है। करने के लिए एक ही सिद्धांत है कि आपका दिल, आपकी भावनाएं, आपकी श्रद्धा उस कर्म को करने के लिए लगनी चाहिए, तब उसका परिणाम आता है। भगवान बुद्ध के जो पहले शिष्य हुए जिनको समाधि लगी, उनकी समाधि लगने की घटना बहुत प्यारी थी। क्या घटना थी? भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, इतनी देर में मक्खली गौशाल नाम था, अंदर उनने प्रवेश किया। प्रवेश करते से ही दोनों की आंखें मिली। आंखें मिली, दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुराए। मुस्कुराते से ही मक्खली गौशाल को समाधि लग गई। आनंद को बहुत बुरा लगा। आनंद को लगा मैं 40 साल से इनके साथ घूम रहा हूँ, मुझे समाधि लगी नहीं। एक आदमी आता है, मुस्कुराता है, समाधि लग जाती है, कैसा डिस्क्रिमिनेशन है। देयर इज नो इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी है। उनने तुरंत भगवान बुद्ध से शिकायत करी। उनने कही क्या हो रहा है? भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद, याद करो जब तुम पहले दिन मेरे पास आए थे तो तुमने क्या कहा था? तुमने 3 चीजें मांगी थी। क्या मांगी थी? एक ये मांगा था कि जिस कमरे में मैं सोऊंगा उसमें तुमको भी सुलाऊंगा, तो हमेशा सुलाया है। दूसरा मांगा था कि जो प्रश्न तुम पूछोगे उसका उत्तर दूंगा, तो हमेशा दिया है। तीसरा कहा था कि जिससे तुम मिलाना चाहोगे उससे मैं मिलूंगा, तो हमेशा मिलाऊं। समाधि तुमने मांगी नहीं, मैं दे सकता नहीं था। जो मांगोगे वही तो मिलेगा। जो हृदय का भाव है वही तो परिणाम में बदलेगा। जब मांगा नहीं तो दूंगा कैसे? फिर भगवान बुद्ध बोले कि ऐसा है आनंद, इस संसार में शिष्य 5 तरीके के होते हैं। कौन से 5 तरीके के होते हैं? बोले ऐसा है कि घोड़े 5 तरीके के होते हैं। बोले कुछ घोड़े तो ऐसे होते हैं जिनके लिए इशारा काफी है, किया खड़े हो जाएंगे, चुटकी बजाई खड़े हो जाएंगे, इतना घोड़े को खड़ा करने के लिए पर्याप्त है।
बोले कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जिन्हें सहलाना पड़ता है, कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जिनको डंडा लगाना पड़ता है, कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जिन पे आप डंडे भी बरसा रहे हो तो अपनी जगह से हिलते नहीं है, और बोले कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जिनके लिए अश्वमेध करना पड़ता है, वो बिना लगाम के होते हैं, छूट गए तो उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। बोले ऐसे ही 5 तरीके के शिष्य होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनके लिए मुस्कुराना काफी है, बोले कुछ ऐसे हैं जिनके लिए शिक्षाएं देनी पड़ती हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको अनुशासन में बांधना पड़ता है, कुछ के लिए भगवान को सुदर्शन चक्र उठाना पड़ता है। वो वाला था भगवान बुद्ध बोले जिसके लिए भरोसे का मतलब अच्छा आए और बुरा आए तब भी भरोसा होना चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि तोते को राम 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 कहना सिखा दो, राम 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 बोलता है। जैसे बिल्ली आकर के गर्दन पकड़ती वैसे ही टेटे टेटे निकलने लगता है। बाकी समय में तो हमने भगवान की तारीफ करी, हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं, गायत्री माता हमारे साथ हैं, भगवान हमारे साथ हैं, और जैसे ही संकट आया वैसे ही हमने भगवान को बुरा क्यों बोलना शुरू किया। वो जो बुरा आया उस समय में भी तो विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं। ये विश्वास जब व्यक्ति के अंदर आता है कि जीवन में अच्छा आए बुरा आए, जो अच्छा लाता है वो बुरा लाना भी जानता है, जो बुरा लाता है वो अच्छा करना भी जानता है। जिंदगी के संकट आए या सौभाग्य आए, दोनों ही स्थिति में भरोसा होना चाहिए कि लाने वाला एक, थामने वाला एक, भगवान तो एक ही है, ही इज देयर। जब महाभारत में ये कहानी तो हर एक को पता है, एवरीवन नोज द स्टोरी। क्या स्टोरी पता है कि जब भगवान कृष्ण ने आपके अर्जुन के समय में ये घटना घटी कि अर्जुन की जो परीक्षा लेने के लिए द्रोणाचार्य ने क्या किया, पानी का तालाब था, उसके बीच में पेड़ था, पेड़ में से शाखा निकली हुई थी, शाखा में से एक मछली बंधी हुई थी, चक्र था, और वो जो मछली थी वो गोल 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 घूम रही थी। निशाना लगाने को बोला, तो जब निशाना लगाने को बोला तो द्रोणाचार्य ने हर एक से पूछा कि आपको क्या दिख रहा है। किसी ने कहा मुझे आसमान दिख रहा है, किसी ने कहा मुझे चक्र दिख रहा है, किसी ने कहा कि मुझे मछली दिख रही है। अर्जुन ने कहा मुझे मछली की आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। निशाना लगा, तेरा लगेगा। ये घटना हर एक को पता है। इस घटना का एक दूसरा पक्ष भी है। देयर इज ए सेकंड पार्ट टू दिस स्टोरी। क्या है स्टोरी? सेकंड पार्ट यह है कि जब पांडवों ने खांडवप्रस्थ बनाया, बड़ा वाला महल, तो वहां पर कौरव आए, और कौरवों के मन में तो बुरी भावना थी। तो कौरवों ने अर्जुन से कहा कि भैया हम फिर से देखना चाहते हैं कि तुम वैसे ही धनुर्धर हो कि नहीं जैसे जब छोटे थे कि नहीं। बोले हाँ। उनने सब कुछ वैसे ही अरेंज किया। एक तालाब ढूंढा, तालाब में एक पेड़ ढूंढा, पेड़ में शाखा ढूंढी, शाखा में रस्सी बांधी। स्टिकल भी आप ही हटा दो, दैट्स नॉट पॉसिबल। फुटबॉल में कोच होते हैं तो कोच सिखा सकते हैं, पर मैदान में उतर के गोल थोड़ी कर सकते हैं। वो काम तो खिलाड़ी को ही करना पड़ता है। दैट इज आवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिंदगी की जो लड़ाइयाँ हैं वो तो हमें ही लड़नी पड़ती हैं। भगवान अवरोधों को दूर करने का काम करते हैं। जिसके मन में भरोसा आ गया कि हमारे जीवन के संकटों को थामने का काम वो करते हैं, उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। श्रद्धा का जो दूसरा पक्ष है वो याद दिलाता है कि जिंदगी के शुभ में अशुभ में दोनों में हमारा भरोसा एक होना चाहिए। रात में दिन में, अच्छा हो बुरा हो, दोनों में हमारा भरोसा अनशेकेबल होना चाहिए। भगवान आ गए और हम जय जयकार करते घूम रहे हैं तो हम भीड़ कहलाते हैं, पर हमारी जय जयकार पे भगवान को आना पड़े तब हम भक्त कहलाते हैं। हमने आवाज लगाई और भगवान को आने के लिए बाध्य होना पड़े तो फिर हम प्रहलाद बन जाते हैं। हमने आवाज लगाई और हमारी आवाज पर भगवान को आना पड़े तो हम ध्रुव बन जाते हैं। हमने आवाज लगाई और हमारी आवाज पर भगवान को आना पड़े तो मीरा बन जाते हैं, नरसिंह मेहता बन जाते हैं, जलाराम बापा बन जाते हैं। द स्टोरी रिमेन्स द सेम। आपकी आवाज के अंदर दम होना चाहिए, पुकार आपकी मजबूत होनी चाहिए। दो ही तरह के भक्त हैं दुनिया में। कुछ बंदर के बच्चों की तरह से होते हैं। हैव यू सीन? बंदर के बच्चे देखे? वो अपनी माँ को पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं। वो ऊपर 10वीं मंजिल से नीचे को कूद जाए, वो कभी उनकी पकड़ छूटती नहीं। और दूसरे कैसे होते हैं? बिल्ली के बच्चों की तरह से होते हैं। बिल्ली के बच्चों में क्या होता है? वो कहीं पर भी हो म्याऊं म्याऊं करते हैं तो मम्मी आ जाती है। मैसेजेस सेम। मैसेजेस या तो आपकी पकड़ मजबूत हो, एक बार भगवान को थाम लिया है तो हाथ कमजोर नहीं होना चाहिए, या फिर आपकी पुकार मजबूत हो। यदि गलती से छूट गया है
तो आवाज के अंदर दम होना चाहिए। यदि किसी कारण से भगवान से हम दूर चले गए तो आपकी आवाज में इतना दम हो कि आपने बुलाया तो भगवान को आना पड़े। बड़ौदा के राजा थे, रंजीत सिंह नाम था, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। इंग्लैंड में शादी करी, वापस लौट रहे थे। देयर वॉज ए स्टॉर्म इन द सी, समुद्र में तूफान आ गया, कैप्टन भी घबरा गया। कैप्टन ने घबरा करके बोला कि जिसको जो मिले वो लेकर के पानी के अंदर कूद जाए, जहाज डूबने वाला है। सब घबरा गए। पत्नी ने देखा कि जो राजा साहब है, राजा रंजीत सिंह, वो तो ध्यान लगा के बैठे। उन्होंने कहा आपको डर नहीं लग रहा? बोले नहीं। क्यों नहीं लग रहा? उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और पत्नी की गर्दन पर रख दी। पत्नी बोली आपको मजाक सूझ रहा है? यहाँ पे समुद्र में तूफान आया हुआ है, स्टॉर्म आया हुआ है, लोग घबरा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आपको मजाक सूझ रहा है, आप मेरी गर्दन पे तलवार लगा के बैठे हो। तो राजा साहब बोले आपको डर नहीं लग रहा है? बोले मुझे डर क्यों लगेगा, आप मेरे पति हो। तो राजा साहब बोले फिर मुझे डर क्यों लगेगा, वो मेरा पिता है। जैसे ही आपको ये भरोसा आ गया कि जो समुद्र में तूफान लाना जानता है वो थामना भी तो जानता है, जो जिंदगी में तूफान लाना जानता है वो थामना नहीं जानता हो। जिसको ये पता है कि जीवन के संकट आए वो जीवन के सौभाग्य लाना नहीं जानता होगा। पर ये भरोसा तो होना चाहिए। श्रद्धा तब पक्की होती है जब हमारे हृदय में अज्ञात के प्रति भरोसा हो। दूसरा, वो भरोसा ऐसा हो कि इट शुड बी अनशेकेबल, ऐसा हो कि उसको आप कमजोर न कर सको। कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, उस भरोसे के अंदर कमजोर हो पाने की संभावना ना हो। तीसरा, उस भरोसे का फायदा क्या है? भरोसे का फायदा यह है कि भगवान के लिए काम करने को हम लोग तैयार हो। यदि हम लोग सिर्फ भगवान की मूर्ति के आगे गए और रो करके आ गए तो उसका कोई लाभ नहीं। लाभ तब है जब इतनी बड़ी दुनिया भगवान ने बनाई है और हमें लगे कि हमारे पिता ने बनाई है। आवर फादर हैज क्रिएटेड इट, इट्स आवर ड्यूटी टू मेक इट ब्यूटीफुल। वो करने का जब भाव हमारे अंदर आता है कि पूरा संसार तो उसी का है, व्हाट कैन वी डू टू मेक दिस अर्थ, दिस प्लेस ए वंडरफुल प्लेस टू बी, तब फिर हमारे अंदर की जो श्रद्धा है वो सही अर्थों में साकार हो पाती है, सफल हो पाती है। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी लैला मजनू की, सुनिए। लैला मजनू की कहानी में एक इंटरेस्टिंग घटना घटी। घटना क्या घटी? लैला तो राजकुमारी थी, मजनू जो था वो गांव का लड़का था। एक दिन लैला ने देखा कि एक लड़का है वो यूं ही घूम रहा है। उसने कहा कि अपनी नौकरानी से कि कौन है, इसको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि ये जो है मजनू है, तुमसे शादी करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू मैरी यू। बोले अच्छा, शादी तो मुझसे नहीं हो सकती, पर एक काम करते हैं। बोले देख इसको खाना तो कहीं से मिलता नहीं होगा। बोले नहीं मिलता है। बोले तो एक काम कर कि इसके खाने की व्यवस्था मेरी ओर से बना दिया कर, गांव के दुकानदारों को बोल दे कि जो भी खाया करे इसका बिल मेरे पास भेज दे, मैं पेमेंट कर दिया करूंगी। ठीक। अब अगले दिन गांव के लड़कों ने देखा कि वो जो मजनू था, जिसको कोई पूछता भी नहीं था, उसको लोग बुला बुला के खिला रहे। अरे हमारी दुकान में बैठ जा, हम खिलाएंगे, हमारी दुकान में बैठ जा, हम खिलाएंगे। लड़कों ने पूछा क्या हुआ? बोले अरे मजनू जो है इसके बिल का पेमेंट जो है लैला करने वाली है। अब गांव के लड़कों को लगा कि इससे अच्छा तो काम ही नहीं हो सकता है। सबने अपने कुर्ते फाड़े, सबने अपने बाल बिखेरे, सबने अपनी दाढ़ी बड़ी करी और सबके सब मजनू बन गए। अब उस महीने का जो बिल आना था वो कितना आ गया? 25,000 का आ गया। लैला बोली अरे 25 रुपए का पेमेंट कर सकती थी, 25,000 का कहाँ से करूँगी? तो उनने क्या किया, उनने अपनी नौकरानी से कहा कि भैया तू सॉल्व करके आ। नौकरानी गई, उसने सब मजनू को बुला लिया, आओ जरा बैठो। क्या है? बोले लैला का एक्सीडेंट हो गया है, खून की जरूरत है, कौन देगा? अब जहाँ खून देने की बारी आई वहां सब एक एक करके गायब होना शुरू हुए। अरे हमारे घर से कॉल आ गई, अरे देखो यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है फोन का, बाहर से अच्छे से आएगा, अरे देखो कौन बुला रहा है, सब गायब होना शुरू हुए। जो असली वाला था वो रह गया। पत्थर उठाया, छाती पे मारा, खून बहा, एक कटोरी निकाला और उसने उसकी नौकरानी को दिया। बोले देख अभी तो इतना निकला है, और निकलेगा तो
तो आकर के मुझसे मांग लेना। उसने उसकी पट्टी करी, बोले नहीं वो करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ असली वाले को पहचानना था। हम ये सोचें कि भगवान हमसे यही कह रहे हैं, असली वाले को पहचानना है। और असली वाले की पहचान हो पाती है कि उसे लगता है कि अरे मानवता का तो एक्सीडेंट हो गया, खून बह रहा है, संस्कृति करा रही है, धरती नष्ट हो रही है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं? होल कंपैशन, सेक्रेडनेस, डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन इज ओनली वन। कि इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमारे द्वारा क्या हो सकता है? इट वॉज क्रिएटेड बाई आवर फादर, हमारे पिता ने बनाया है, इस दुनिया का निर्माण किया है। हमारे हृदय में श्रद्धा का जागरण होता है तो उसका फायदा एक ही है कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हम लोग कुछ न कुछ करें, हमारे द्वारा हो जाए। और वो करने के लिए क्या जरूरत है? उस प्रॉब्लम को अपना समझने की जरूरत है। वी डोंट हैव टू डिसोसिएट विद द प्रॉब्लम। ये अमेरिका की प्रॉब्लम है, जापान की प्रॉब्लम है, इंडिया की प्रॉब्लम है, इंडिया में भी नॉर्थ इंडिया की है, साउथ इंडिया की, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये इंसान की प्रॉब्लम है, धरती की प्रॉब्लम है। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक होने की आवश्यकता है। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। स्वामी राम तीर्थ थे, स्वामी राम तीर्थ जो थे बड़े प्रसिद्ध संत हुए, पहाड़ी चढ़ रहे थे। उनने देखा कि एक छोटी सी लड़की है, वो अपने भाई को, ऐसे 12 साल का रहा होगा, अपनी पीठ पे ऐसे बोरी की तरह से उठा के जा रही है। स्वामी राम तीर्थ को लगा कि मुझे चढ़ने में इतनी तकलीफ हो रही है, इस बच्ची को कितनी हो रही होगी। उनने उसको रोका, उनने कहा बेटा तू थक गई होगी, मुझे दे दे, भारी है। वो लड़की पलट के उनसे क्या बोली? बोले स्वामी जी भारी आपके लिए होगा, मेरे लिए तो भाई है। हम यही सोचे, ये धरती नहीं है, माँ है हमारी, दुनिया है हमारी। यदि वो भाव मन में आ गया तो श्रद्धा का जागरण हो जाता है। जो श्रद्धा का जागरण है वो यही बताता है कि वो सारी प्रॉब्लम जो दुनिया में बिखरी पड़ी है उनको सॉल्व करने के लिए हमें अपना समझने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने हमें एक ही सूत्र बताया, यही सूत्र बताया कि पूरी की पूरी दुनिया एक, मानवता एक, इंसान एक, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान। क्यों बताया? ताकि सबकी प्रॉब्लम एक समान, और जब प्रॉब्लम एक समान तो सॉल्यूशन एक समान। उसको सॉल्व करने के लिए एक ही चिंतन को धारण करने की आवश्यकता है कि यहां से उठे और ये सोचें कि आज तो मैं गिफ्ट में पूरी दुनिया मिल गई है, द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू अस। और इसको अच्छा बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? द मोमेंट वी हैव दैट फीलिंग इनसाइड आवर हार्ट, सॉल्यूशंस आर देयर। जो श्रद्धा है वो एक ही चीज बताती है कि इतनी बड़ी दुनिया को सुधारने के लिए एक व्यक्ति काफी नहीं है, हर व्यक्ति की आहुति लगने की आवश्यकता है। दीपक जलेगा तो इतने क्षेत्र में प्रकाश आएगा, सूरज उगेगा तो पूरी दुनिया का अंधेरा जाएगा। हमें तो सूरज की तरह से उगने की आवश्यकता है। अंत में बस एक कहानी सुना करके बात को समाप्त करूंगा। कहानी प्रसिद्ध रानी की है, नाम था अहिल्याबाई होलकर। 12 साल की थी, रानी बन गई। 29 साल तक लड़ती रही। शी वॉज सच ए फियर्स लेडी। एक हाथ में शिवलिंग लेकर दूसरे हाथ में तलवार लेकर के लड़ती थी। एंड ऑन वन पर्सन्स करेज एंड डिटर्मिनेशन शी कुड एस्टेब्लिश ए किंगडम बिगर देन यू कैन इमेजिन। उधर उत्तर भारत से लेकर नीचे तक, यदि अहिल्याबाई होलकर नहीं होती तो सोमनाथ के मंदिर का उद्धार न हुआ होता, जितने 12 ज्योतिर्लिंग है उनका उद्धार न हुआ होता। अकेली महिला ने भारत में 700 मंदिरों का निर्माण कराया। अद्भुत महिला। पर क्या हुआ? इतनी लड़ाई के कारण शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाई। तो वन डे शी कॉल्ड हर प्रीस्ट। बोले जिंदगी में लड़ती रही, गीता पढ़ने का बड़ा मन था, पढ़ नहीं पाई, आप मुझे गीता सिखाएंगे? बोले हाँ। एक काम करिए, रोज आकर के गीता का एक श्लोक बोलिए, उस पर मैं चिंतन करूंगी तो धीरे धीरे करके मुझे पूरी गीता याद हो जाएगी। बोले हाँ ठीक। अगले दिन पंडित जी आ गए। बोले धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयोत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे, पांडु के बच्चे मिलके क्या कर रहे हैं बता। ऐसा उन्होंने बोला। इतना बोलना था
कि अहिल्याबाई होलकर ने थाम दिया। गीता मेरी समझ में आ गई, आगे मत बोलिए। क्या बोल रही है महारानी? पंडित जी बोले 700 श्लोक की गीता है, अभी तो पहला श्लोक हुआ है, और वो भी जो कहानी का विलन है वो बोल रहा है धृतराष्ट्र। बोले भगवान ने तो भी बोला ही नहीं, भगवान का बोलना तो शेष है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग सब बाद में आने वाला है, अभी तो कोई ज्ञान की बात नहीं आई। बोले नहीं नहीं, फिर से बोलिए। बोले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, रुक जाइए। बोले आप बोल रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और मैं सुन रही हूं क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जिसको जो क्षेत्र मिल गया, जहां क्षेत्र मिल गया उस क्षेत्र में वो धर्म करे। बोले मेरी दृष्टि में गीता का यही सार है। मैं कहूंगा कि एक ही सिद्धांत लेकर के जाएं, जहां हमें ऊपर वाले ने बिठा दिया। बेटा बना दिया अच्छे बन जाए, बेटी बना दिया अच्छे बन जाए, भाई बना दिया अच्छे बन जाए, बहन बना दिया अच्छे बन जाए, पिता बना दिया अच्छे बन जाए, माता बना दिया अच्छे बन जाए, जो बना दिया अच्छे नागरिक बन जाए, अच्छे इंसान बन जाए। जो क्षेत्र दिया है, टीचर हैं तो अच्छे टीचर बन जाए, डॉक्टर हैं तो अच्छे डॉक्टर बन जाए, बिजनेसमैन है तो अच्छे बिजनेस बन जाए, पुलिस में है तो अच्छे पुलिस वाले बन जाए। जहां हैं वहां हम अच्छे बन जाए। दैट्स आवर ड्यूटी एंड दैट्स द ओनली समरी एंड मैसेज ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। श्रद्धा जागती है तो हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति के अंदर भगवान नजर आता है, और वो भगवान जब नजर आता है तो सारी समस्याएं अपनी आती हैं। समस्याएं अपनी नजर आती हैं तो समाधान हमारे आते हैं। समाधान हमारे आते हैं तो एक चिंतन आता है कि जहां भगवान ने बिठा दिया वहां पर अच्छा करने की आवश्यकता है। तो मैं एक ही प्रार्थना करूंगा, गुरु पूर्णिमा का अवसर आ रहा है, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक ही चिंतन लेकर के जाएं कि हमारे द्वारा अच्छा क्या हो सकता है, इस यज्ञ में हमारी आहुति कैसे डल सकती है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति को जो अभी तक नहीं आए, पहले चरण का आवाहन तो मैं ये करूंगा कि आमंत्रण ये दूंगा कि आप में से जिनने गायत्री ज्ञान मंदिर शिकागो को नहीं देखा हो तुरंत आ जाइए। ऐसे लोग यदि हों जिनको अभी तक देखने का अवसर नहीं मिला तो आप पहले चरण में तो आप वहां आ जाइए, और वहां आइए तो ये सोचिए कि इस जगह को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। पैसे की नहीं, आपकी भावना की, आपकी प्रतिभा की, आपके मनोयोग की आवश्यकता है। पैसे से इमारतें बन जाती हैं, इंसान नहीं बन पाते। वी आर नॉट हियर फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड बिल्डिंग्स, वी आर हियर फॉर द पर्सन। अच्छे लोग आए, अच्छी भावना के साथ आए। दूसरे चरण में आपको जो पहली छुट्टी मिलती है तो आपको हरिद्वार आने की आवश्यकता है। आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, आप लोगों का एक घर जो है वो हरिद्वार में भी है, शांति कुंज नाम है उसका। आज के दिन आप ये मत सोचना कि हरिद्वार से कोई स्वामी जी आए थे आपको लेक्चर देने के लिए आए थे। आप ये सोचना आपके भाई हरिद्वार से आए थे और आपको इनविटेशन देने के लिए आए, और ये इनविटेशन देने के लिए आए थे कि द मोमेंट यू गेट योर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कम टू हरिद्वार। हम लोग वेट कर रहे हैं, और अब स्कोर जो है वो 1-0 का हो गया है। हम तो आ गए, आप तो आए नहीं। उसको 1-1 का करने के लिए जरूरी है कि यू शुड ट्रेवल टू हरिद्वार एज सून एज पॉसिबल। तो इतनी देर तक मंडे के दिन, जैसा कांग्रेसमैन ने भी बोला, आप लोग अपने अपने बिजी समय में से यहाँ समय निकाल करके बैठे, उसके लिए आप सबको बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। स्वाहा वज्रासन, तत् कैमल पोज, सवितुर योग मुद्रा, वरेण्यम अर्धताड़ासन, भर्गो चाइल्ड पोज, देवस्य कोबरा पोज, धीमहि कोबरा पोज लेफ्ट साइड, धियो राइट साइड, योनः अगेन चाइल्ड पोज, प्रचोदयात् ओम भूर उत्कटासन, भुवः फॉरवर्ड फोल्ड,
स्वाहा। ओम जय गुरुदेव। All right, ladies and gentlemen, I'd like to call up a very renowned guest here, Dr. Bharat Barai. He is an oncologist, U.S. Congressman of the 8th District. Mr. Somnath Ghosh, who is the Consulate General of Chicago. Dr. Shamkant Seth, who is a representative from VHPA, International Trustee. Dr. Rashmi Patel is the President of FIA. Dr. Chittaranjan Patel, Veer Sharma from Hanuman Temple, Pritesh Gandhi for allowing us to host the event at his beautiful venue, Ms. Vandana Jingan from TV Asia, thank you, Chirayu Parikh from Jalaram Mandir, thank you, Dr. Bharat Barai, thank you. And Mr. Sanjay Shah from Jain Temple, thank you. I also want to thank all of the volunteers who have helped organize the event. They've worked tirelessly for months to come together at the Mandir to celebrate and to organize the event. And not only that, to come here early and set up the stage, set up the food that you all ate. There's so many people at Parijans at the Mandir, they don't want to be recognized, but I'm going to be offering my gratitude and all of our gratitude to them who've offered their devotion and selfless love towards our mission. Those who have volunteered for this event would love to have you come on stage. We're going to take a photo together. Don't be shy. Everyone who's wearing this yellow shirt, who's worked very hard throughout the day, please come up to the stage. We'd like to take a photograph together. Just a minute. Just wait for a minute. भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।